मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो मैंने मल्टीपल चॉइस करवा दिया था, इट वॉज नंबर वॉज 243 दैट वॉज कंप्लीटेड. सो वेल, अभी जो मुझे डील करना है 252 मैंने कर दिया था. इनफैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 4 में आता है, तो उसे एक बार फिर से उसको रेफर करेंगे. फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर से उसको आप कॉमन ग्रुप में डाल दीजिए. आप 266 में डील करता हूं. A clock which keeps correct time at 20 degrees centigrade is subjected to 40 degrees. The coefficient of linear expansion of the pendulum is given to you. Then how much time will it lose in a day? And इसका मतलब ये होता है 266 में what exactly is happening here is 20 degrees पे वो करेक्ट टाइम दे रहा है, लेकिन 40 डिग्री पे जब उसको लेके जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, द लेंथ विल इंक्रीज, और लेंथ इंक्रीज होने के कारण टी विल ऑल्सो इंक्रीज, और टी इंक्रीज होने का मतलब यह होता है द पेंडुलम विल बिकम स्लो. पेंडुलम स्लो होने का मतलब इट विल लूज टाइम. लास्ट टाइम जो मैंने इक्वेशन डिराइव किया था, dt upon t is equal to half dl upon l. तो एक काम करेंगे, this is equal to how much? This is equal to half. और एक बात है, change in length is equal to what? Original length, coefficient of expansion into the rise in temperature, which is delta t. The change in length is equal to original length into coefficient of expansion into the rise in temperature. तो इसीलिए dl upon l मैं लिखूंगा to be equal to alpha into delta t. So I have this half, और ये dl upon l मैं लिखूंगा alpha into delta t. So I have dt upon t is equal to half. This is 12 into 10 to the power 10 to the power minus 6 दिया हुआ है. 10 to the power minus 6 and the rise in temperature is 40 minus 20, which is equal to 20. So in fact ये हो गया 10. So मुझे मिलेगा dt upon t is equal to how much? This is 12 into 10 to the power minus 5. So time it will lose in a day मुझे निकालना अगर है तो dt in a day, this is t multiplied by 12 into 10 to the power minus 5. So t, the total time is 24 into 3600 into 12 into 10 to the power minus 5. So this will be equal to 24 into 36 into 12 into 10 to the power minus 5. Well, and you should get the answer. जो कि आंसर आता है देख लीजिए. But well, anyway, I would like to point out here, ये मैंने last time derive किया था dt upon t. This is the loss of time and this is the total time. Loss of time in total time t, half dl upon l. और एक बात ध्यान में रखें कि this dl upon del is equal to alpha into delta t, and this is how we get the result. So well, आगे बढ़ते हैं 267 के लिए. A clock S is based on the oscillation of the spring and the clock B is based on the oscillation of pendulum. Number is 267. क्या दिया देख लीजिए आप पहले. The clock S is based on the oscillation of spring and the clock P on the oscillation of pendulum. इस प्रकार से दिया गया है. Both the clock run at the same rate on the Earth on a planet having same density as Earth but twice the radius. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, यहां पर जो ऑसिलेशन है Ts is equal to 2 pi root of m upon k. ये इनर्शिया फैक्टर है, ये स्प्रिंग फैक्टर है. It does not depend on acceleration due to gravity. Let it be very clear.
तो t की वैल्यू ऑन द अर्थ will be equal to same on the planet. T की वैल्यू सेम रहेगी on the planet and on the earth it will remain same because it does not depend on acceleration due to gravity. लेकिन यहां पर it will depend on acceleration due to gravity. तो on the planet अभी जैसे G is equal to gm upon r square ये फॉर्मूला है. यहां पर आपको दिया गया है density is same but twice the radius. तो मैं यहां पे लिखूंगा G अपॉन आर स्क्वायर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो आपको G मिलेगा इक्वल टू दैट विल गेट कैंसल 4 कैपिटल G पाई आर रो अपॉन 3. आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर. तो मैं यहां पर लिखता हूं G ऑन द प्लैनेट अपॉन G ऑन द अर्थ इज इक्वल टू R planet, R Earth, density is same है, it will get cancelled. Planet का radius कितना दिया? Twice the radius, so this becomes equal to 2. तो मैं लिखूंगा planet G upon Earth G is equal to 2. ये मुझे मिल गया. आगे बढ़ते हुए, so T on the planet डैश लेता हूं मैं एंड T on the earth दोनों तो सेम ही है. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? रूट ऑफ GE अपॉन GP. ये क्या है? पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम ऑन द प्लैनेट, पेंडुलम पीरियोडिक टाइम ऑन द अर्थ, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ये डिफरेंट रहेगा ऑन द अर्थ. वेल ऑन द अर्थ में ले रहा हूं. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? हाफ. तो TP डैश इज इक्वल टू, ये हाफ अगर है तो दिस विल बी इक्वल टू TE अपॉन रूट 2. अब इसका मतलब यह होता है कि पीरियोडिक टाइम इसका इट इज व्हाट? लेस देन periodic time of the pendulum. आप देख लीजिए यहां पर ऑन द प्लैनेट फर्क पड़ने वाला है पेंडुलम को, नॉट फॉर द स्प्रिंग. स्प्रिंग पेंडुलम को फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्कशन हो चुका है. तो व्हाट हैपेंस नाउ? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट अपॉन दैट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 2 times. Periodic time, formula for the periodic time of the pendulum is 2 pi root of L upon G. इसलिए जब मैं रेशियो निकालूंगा periodic time of the pendulum on the planet upon periodic time of the pendulum on the earth ले लिया मैंने, तो ये रेशियो मिलेगा and this is what I get. इसका मतलब क्या होता है कि पेंडुलम का periodic time, pendulum periodic time is less than pendulum periodic time on the planet is less than pendulum periodic time on the earth. Periodic time कम का मतलब होता है ये फास्ट है. It's very clear that pendulum periodic time is equal to, it is less का meaning है this is fast. So what will happen? अभी 2 pendulums आप देखे गए. One is the spring, एक पेंडुलम ये है और एक स्प्रिंग पेंडुलम है. तो पेंडुलम ऑन द प्लैनेट उसका पीरियडिक टाइम कम है बिकॉज दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग का पीरियडिक टाइम ऑन द अर्थ. इट इज सेम. So it will mean that what will happen here in this particular case? The pendulum
ऑन द प्लैनेट उसका पीरियडिक टाइम कम है, इसका मतलब है इट विल बी फास्ट, तो हम क्या बोलेंगे T विल बी फास्टर देन S। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 270 में समझने की कोशिश करेंगे अपन। इनिशियली इन दिस U-tube जो भी लिक्विड आप डालेंगे यहां पर, दिस विल बी एट द सेम लेवल। लिक्विड अगर एक है तो सेम लेवल रहने वाला उसका। आपने क्या किया, इसको अगर नीचे की तरफ ढकेल दिया बाय x, ये ऊपर जाएगा बाय x, दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल। ये नीचे आ गया बाय x, दिस विल गो अप बाय x, और दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा इनफैक्ट इक्वल टू 2x। इट्स वेरी क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नीचे गया बाय x, दिस विल गो अप बाय x, सो प्रिसाइजली अभी क्या हो गया कि ये लेवल इसका बढ़ गया बाय 2x, तो डेफिनेटली दिस लिक्विड विल पुश द लिक्विड हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज यहां पर इसकी लेवल ज्यादा हो चुकी है, तो डेफिनेटली लेवल कितने से ज्यादा हो गई, देन दिस इज 2x। सो डेफिनेटली दिस एडिशनल लिक्विड जो यहां पर है, इट विल पुश द लिक्विड हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड और ये एडिशनल लिक्विड यहां रहने के कारण दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज इसके फोर्स के कारण ये लिक्विड ऊपर चढ़ता है। In fact, this is the equilibrium position. Stable रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन जब आपने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया है, it will definitely come back to the original position. और ओरिजिनल पोजीशन पे आने का रीजन है ये एडिशनल लिक्विड जो यहां पर है, इसका लेवल कितना है, इज इक्वल टू 2x। दिस विल पुश द लिक्विड हियर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? It will be equal to weight of the liquid of length 2x। एडिशनल लिक्विड कितना 2x है ना लेंथ उसका, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, weight of the liquid of length 2x and weight of the liquid will be equal to volume। वॉल्यूम कितना रहेगा A, वॉल्यूम इस सिलेंडर का कितना रहेगा, सिलेंडर उस पर्टिकुलर पोर्शन का कितना रहेगा, इट विल बी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2x into density of liquid into G। रिस्टोरिंग फोर्स है तो मैं यहां पर माइनस साइन दे देता हूं इनफैक्ट। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज इक्वल टू माइनस kx। तो मुझे द फोर्स कांस्टेंट k मुझे मिलेगा इक्वल टू 2a रो इनटू g। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, द फोर्स कांस्टेंट k। याद रखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन जब डिराइव करते हैं तो F इज इक्वल टू माइनस kx हमको मिलता है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, k अपॉन m। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, आई वांट टू फाइंड द पीरियडिक टाइम, तो मुझे ओमेगा की जरूरत नहीं फाइंड करने। वेल आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू k अपॉन m है। एक काम करेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और एक बात है, व्हाट इज एक्सीलरेशन नाउ? इफ दिस इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। इज वेरी क्लियर। मास का मतलब होता है कि ऑसिलेट क्या कर रहा है, पूरा लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है। So the complete liquid is oscillating, हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है, माइनस a इंटू 2x इंटू रो इंटू g। दिस इज द टोटल फोर्स एंड टोटल मास मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज टोटली कंप्लीटली द लिक्विड इज ऑसिलेटिंग। तो टोटल मास के लिए वॉल्यूम कितना रहेगा, इट विल बी a इंटू l, that's the volume into density, that's what I get। So definitely what is remaining here is equal to minus, अभी आप देख लीजिए, this is the cross sectional area here, a and a will get cancelled, तो मुझे मिलेगा माइनस रो एंड रो will also get cancelled, तो मुझे यहां पर मिलेगा माइनस 2x g अपॉन l।
this is the acceleration, and acceleration is equal to minus omega square x. तो minus minus sign will get cancelled, x and x will also get cancelled, तो मुझे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर is 2g upon L. तो मुझे मिलेगा the periodic time is equal to 2 pi upon omega, which is equal to 2 pi, और इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा L upon 2g. This is the relation which is obtained. मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए आप. द नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही है. दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द लिक्विड. इस लिक्विड को हमने ढकेल दिया बाय x, तो ये ऊपर जाएगा बाय x, लेकिन ये दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस रहेगा 2x. तो एडिशनल वेट हियर इन दिस ट्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ लेंथ 2l. ये जो लिक्विड है एडिशनल इट विल एक्सर्ट अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो जिसके कारण लिक्विड ऊपर चढ़ेगा. सो दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा? वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ लेंथ 2l 2x. तो वेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू 2x इनटू रो. ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g. सो दिस इज व्हाट यू गेट द रिस्टोरिंग फोर्स के. मुझे अभी इंटरेस्ट है एक्सीलरेशन में, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब एक बात बताइए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. मास क्या रहेगा? पूरा मास नहीं है इसका, बिकॉज द कंप्लीट लिक्विड इज ऑसिलेटिंग. इसमें पूरा मास में ले लेता हूं. यहां पर पूरा मास कितना रहेगा? इट विल बी वॉल्यूम विच इज a इंटू एल इंटू डेंसिटी, और अल्टीमेटली यू गेट दिस रिजल्ट. In problem number 279 में देख लीजिए, 9 kg solution it is poured in this glass U tube as shown in the figure. तो total kgs कितना है? The mass of the liquid is equal to 9 kgs. The tube's inner diameter is equal to, which is given, the solution oscillates freely up and down about its position. The period of oscillation in seconds आपको निकालना है, and 1 cubic meter of the solution has a mass of 900 kgs. G is equal to 10 meter per second square. तो मुझे अभी यहां पे निकालना था पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. आई एम सपोज टू फाइंड आउट हियर. तो सेम टाइप का प्रॉब्लम है इनफैक्ट, लेकिन यहां देख लो डिफरेंस एज सच कुछ भी नहीं है. सेम रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी दिस. रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस. ये मिल गया मुझे. एक्सीलरेशन जो है इट विल बी फोर्स अपॉन मास, लेकिन यहां पर इन्होंने मास वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 9 kgs. वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट. एक काम करता हूं, आई यूज दिस ब्लू पेन नाउ. आई स्टार्ट हियर. 279 के लिए क्या रहेगा? मुझे मिल चुका है दैट रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस कितना रहेगा? 2ax रो इंटू g. ये मैंने निकाल लिया बाय द सेम मेथड. और यहां पर मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. अभी आप देखेंगे मास तो 9 kg सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स रो इंटू जी अपॉन एम. एक काम करेंगे अभी हम आर के जगह में d बाई 2 लेंगे तो ये d स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा. सो अल्टीमेटली आई हैव दिस टू बी इक्वल 4 आएगा, तो यहां पर डिनोमिनेटर में 2 बचेगा. सो दैट इज पाई d स्क्वायर एंड दिस इज x रो g अपॉन m, और यहां पे इट विल बी 2, बिकॉज यहां पे r d बाई 2 है तो ये 4 आ जाएगा. 2 4 दैट इज इक्वल टू 2 बचेगा यहां पर. सो व्हेन दिस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड सो आई हैव ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ x निकल जाएगा. दिस इज पाई d स्क्वायर रो g अपॉन 2m. ये मुझे मिल गया. तो मुझे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस क्वांटिटी हियर. इट इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर रो g अपॉन 2m. So well, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं. उनका यह कहना है कि 1 क्यूबिक मीटर हैज अ मास ऑफ 900 kgs. इसका मतलब वो डेंसिटी दिया है
900 upon meter. That's the density. एक डायरेक्टली दे दिया उन्होंने, अलग तरीके से बोला है कि 1 cubic meter will weigh 900 and डेंसिटी दे दिया आपको. So omega will be equal to root of pi. Now what is d equal to? D is equal to 2 pi and ये रहेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर करने के बाद pi upon 5. D की वैल्यू यहाँ पे दी के रखे. It is 2 root pi upon 5. So definitely that will be the answer. Multiplied by rho, which is equal to 900, multiplied by 10, which is g, and divided by 2 times m, that is equal to 9. Well, after solving this equation, आपको मिलेगा this omega. ये pi को बाहर निकाल लेता रूट के, 2 को बाहर निकाल लेता यहां से मैं, और यहां पर this 9 will get cancelled, यहां पे 100 आ जाएगा. So that will be equal to 100. It is 1000 in fact. That is equal to 1000 upon 5. I think that's very clear. So well, एक बार हम चेक कर लेते हैं. It is pi d square 4 pi upon 5 ये बराबर है. This is 910 और 2 into this. ये कैंसिल होने के बाद 100 आएगा तो दिस इज इक्वल टू 1000. पाई को बाहर निकाला, 2 बाहर निकाल लिया हमने, एंड द 2 इज रिमेनिंग हियर. इट इज इक्वल टू 10. तो मुझे मिलेगा 100 एंड अल्टीमेटली ओमेगा इज इक्वल टू पाई इंटू 2 अपॉन 10. तो ये रहेगा पाई अपॉन 5. And so the periodic time t is equal to 2 pi upon omega, which is 2 pi upon pi by 5. So this will be equal to, this will get cancelled. यहां गलती हो गई, देख लीजिए आप. This is what 2 pi. ये कितना रहेगा? 10 कैंसिल होने के बाद 100, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 रहेगा. सो डेफिनेटली व्हाट इज दिस इक्वल टू? t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो 2 पाई हम लिख लेते हैं और ओमेगा रहेगा 2 पाई अपॉन 10 इंटू 10. सो अल्टीमेटली द आंसर इज 0.1 सेकेंड. दोनों को पार्ट को देख लीजिए, सिर्फ डिफरेंस एक ही यहां पर. रिस्टोरिंग फोर्स तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ मास यहां पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. मास की जगह में मुझे 90 kg सब्स्टिट्यूट करना है. तो ए को मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया यहां पर, तो मुझे ये डी मिल गया. आर इज इक्वल टू डी बाई 2 और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ओमेगा मिल गया. अल्टीमेटली गेट डी. सो बोथ द प्रॉब्लम्स आर ऑलमोस्ट सेम. डिफरेंस आई थिंक इज वेरी क्लियर. मुझे डिफिकल्टीज के नंबर जितने भी दिए गए थे, आई हैव डेल्ट विद ऑल दोस. एडिशनल डिफिकल्टीज आई डू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल. आती अगर है तो डेफिनेटली आप उसको डाल देंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो मैं चालू करूंगा इट विल बी ऑन वे मोशन. सो टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ वे मोशन. रिवीजन एक बार करने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस. ओके, थैंक यू.